नमस्कार सबको और जय श्री राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में आने का। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और ये बहुत इम्पोर्टेंट अभियान है। मुझे थोड़ा क्षमा कीजिएगा, मैं 55 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ, तो थोड़ी हिंदी का प्रभाव थोड़ा कम हो गया है, तो मुझे इंग्लिश में स्विच करना पड़ेगा। लेकिन let me just talk a little bit about VHPA. VHPA is the oldest Hindu organization in North America. It started in 1970, so it's 54 years old, serving the Hindu community for the last 54 years. VHP Canada, which is our partner in this Abhiyan, they are also an old organization, but they recently got revitalized, and they are doing a fantastic job of being part of this yatra as well as spreading the message of Hindu Dharma in Canada. On behalf of some 8 million Hindus, it is really an honor to bring this Ram Rath Yatra to North America. Before we talk about that, I think we should remember Mananiya Ashok Singhal ji and others without whose personal dedications and sacrifices this day would not have been possible. Coming to the present, Shri Ram Rath Yatra, actually the seed of this started with the Pran Pratishtha, Shri Ramlala Pran Pratishtha ceremony on January 22nd. And before that, as a matter of fact, Vishwa Hindu Parishad of America and Canada, we actually connected close to 1,000 mandirs across North America with that ceremony. They were all together on the night of the 21st, celebrating along with all the devotees in Bharat, celebrating the Pran Pratishtha ceremony in Ayodhya. So the Ram Rath Yatra really starts from that point on. Many of us were, fortunate to be present in that and receive the blessings directly from Shri Ram Lala in Ayodhya. And so the Ram Rath Yatra is actually, I would say, is the brainchild of Amitabh Mittalji, who is here on the screen, our General Secretary. And of course, all of us became part of this Abhiyan with our heart and soul. It's a major undertaking for Vishwa Hindu Parishad of America and Canada. Both of us are covering our part of the territory. Ajay Shahji, namaste. Ajay Shahji has just joined. He's our president of the Vishwa Hindu Parishad of America. So coming back to Ram Rath Yatra, it is an abhiyan that started on the day of Holi, March 23rd in Chicago, and it is meant to go across the length and breadth of United States on our side, and a similar yatra on the Canadian side, starting in Toronto, going on both ends of the country. It's 5,000-mile long country, and from British Columbia to Prince Edward Island, they're so they are working on that part of it. The yatra itself is actually, we said it's going to be about 8,000 miles in the US and about 8,000 miles in Canada. Reality is it's going to be close to 20,000 miles in the US, and I have no idea how long it's going to be in Canada. So it's a major undertaking. And I think credit goes to people like Amitabhji, who have personally taken 2 months away from their their busy lives, and of course Tejal Shahji and Ajay Shahji and others, to be part of this abhiyan from start to finish. So I'm going to stop here, and I will invite Amitabhji first, and then Tejalji to give their personal experiences about how the yatra has gone so far. Namaskar, Jai Shri Ram. This is a thank you so much for Jaya Manjari ji and all the attendees in the press club today. मैं हिंदी में इंग्लिश में वही जो अजय जी ने बोला वो थोड़ा स्विच बैक एंड फोर्थ होता रहेगा, तो क्षमा चाहूंगा. हम
जी आपकी आवाज पूरी क्लियर नहीं आ रही है। मैं आग्रह कर रही हूँ कि यदि आप हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी और इंग्लिश के जो भी पत्रकार यहाँ पे हैं सभी लोग डेट वाइज सारी चीजें मैनेज कर पाएंगे, देख पाएंगे। प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न करेंगे पूरा हिंदी में बोलने का। आ, तो ये यात्रा जो है इसके लिए श्रेय मैं मिलिंद परांडे जी को दूंगा। तो उनका एक संक्षिप्त सा टूर था भारत का, वो सबको मिलने के लिए आए, बताने के लिए आए कि हमको सबको निमंत्रण देना है, मंदिरों को सबको बोलना है कि अयोध्या की जाने की जगह यहीं से देखें। प्रभु ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है अभी कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र ने बैठकर संजय से महाभारत सुनी थी, आप लोग भी सुनिए, आप प्रत्यक्ष वहीं होंगे, इसके लिए आपको वहां आने की जरूरत नहीं है। तो वहां से हमने मंदिरों को जोड़ा सबको। वीएचपी ने ये प्रण लिया, तो हमने वीएचपी के साथ सबने जाकर सब मंदिरों को रजिस्टर किया, उनको समझाया, उनको इंस्ट्रक्शन सेट दिए जो भारत से आए थे। और भारत में भी तो मैंने उनको बोला था मनिंद जी को कि यहाँ पर 1143 के करीब मंदिर हैं, ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, कैसे जोड़ेंगे। तो उनका सिंपल सा आंसर ये था कि भारत में वीएचपी 5 लाख मंदिरों को जोड़ रही है, तुम्हारे पास तो सिर्फ 1100 है। तो उसका उत्तर देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। तो तेजल बेन, शी इज द कोऑर्डिनेटर। वो हिंदू मंदिर एम्पावरमेंट काउंसिल हमारा प्रोग्राम है। तो मंदिर काफी हमारे से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो कार्य थोड़ा सा आसान हो गया। तो कुछ नए मंदिर भी जुड़े और कुछ नए मंदिर अब जुड़ रहे हैं। तो हम ये प्रोसेस तब से शुरू हुआ। और जब ये प्रॉमिस किया गया कि प्रसाद और अक्षत आएंगे पूजित, और वो आपको सब मंदिरों को देने हैं, तो वो अब कैसे दिए जाएंगे, ये विचार किया। तो आप उनको मेल में भेज सकते हैं, फेडेक्स कर सकते हैं, यूपीएस कर सकते हैं, पर वो पर्सनल नहीं है और वो पूजित अक्षत है, प्रसाद है, वो कहाँ किस तरह से पहुंचेगा, कोई मिस हो जाएगा, गलत पहुंचेगा, क्योंकि काफी मेल एड्रेस लोगों का गलत होता है, कुछ होता है। अभी यात्रा में भी हमको पता चल रहा है कि कई मंदिरों का जो एड्रेस हमारे पास था, 3 मंदिर, अब वो किसी ने अपना पर्सनल घर का एड्रेस डाला हुआ था, मंदिर का एड्रेस नहीं था, तो हम उनके घर के बाहर पहुंच गए। तो वैसे ही मेल लॉस नहीं हो तो हम पर्सनली जाएंगे। तो दैट इज द इंस्पिरेशन कि पर्सनली जाके हम सब हिंदुओं को जोड़ना चाहते हैं और अपने हाथ से ये प्रसाद और अक्षत वितरण करना। तो अब तक हम 205 मंदिरों में जा चुके हैं कल रात तक। आज विश्राम का दिन है, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है तो अमेरिका में, तो हम बाहर नहीं निकलेंगे आज। तो हम अब तक 205 मंदिर कर चुके हैं, 14 स्टेट्स को विजिट कर चुके हैं, 13 स्टेट्स अमेरिका की कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी बाकी की जो कंटिन्यूअस स्टेट्स हैं 35, उनके लिए आज से यात्रा शुरू करेंगे। तो अभी तक हम अबाउट 900 किलोमीटर 9000 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। और उत्साह और प्रेम और आशीष जो मिल रहे हैं हमें सब भारतीय हिंदू समाज से, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। रात के 10-10 बजे तक लोग अब मंदिर के द्वार खोल कर बैठे हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं। हम बड़े मंदिरों में गए, छोटे छोटे मंदिर में भी गए, नो भूटानीज हिंदू कम्युनिटी, नेपालीज हिंदू कम्युनिटी, उनके मंदिरों में, करिबियन हिंदू कम्युनिटी। सो एक एक राम का नाम लौटने से बहुत बड़ा उल्लास है पूरे पूरे विश्व में, मैं कह सकता हूँ अभी पूरे विश्व में उल्लास है। और हमको उसमें सम्मिलित होने का इससे अच्छा अवसर और नहीं मिल सकता था कि हम अपने आप से जाकर लोगों से मिलें।
मैं इतना ही कहूंगा अभी। तेजल जी, आप थोड़ा बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मंदिरों के साथ? नमस्ते, प्रणाम सबको। जय श्री राम। जैसे अमिताभ मित्तल जी ने बताया, मंदिरों के साथ हम हिंदू मंदिर एम्पावरमेंट काउंसिल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 20 साल से हम उनके साथ साल में एक बार हमारा कॉन्फ्रेंस जो होता है उसके माध्यम से मिलते हैं। बहुत सारे मंदिर के विषयों के ऊपर चर्चा वगैरह होती है, वेबिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं थ्रू आउट द ईयर। पर हमेशा ऐसा कुछ लगता था कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। और ये यात्रा के माध्यम से, राम जी के नाम के माध्यम से, वो जो छूट रहा था वो हाथ में आ गया और सारे मंदिरों के हृदय में भी बैठ रहा है। अब सारे मंदिरों को ऐसा लग रहा है कि हमें एक साथ एकजुट होना चाहिए। सारे हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि हमें एक साथ एकजुट होना चाहिए। जहां भी जाते हैं हम, वहां पे हर्षोल्लास और प्रेम से राम जी का इतना बढ़िया स्वागत। एक से बढ़कर एक मंदिर में सब अरेंजमेंट होती है। कहाँ पे पालकी होती है, कहाँ पे ढोल ताशे होते हैं, कहाँ पे अपने अपने जो भारत में जो प्रांत है वो सारे प्रांत की रीति रिवाज और वो उनका उपयोग करके लोग किसी भी तरह राम जी को रिझाने के लिए आ जाते हैं। रात के चाहे 10 बजे हो या सुबह को हम बोले कि हम 8 बजे आ रहे हैं, तो वो 8 बजे भी वहां मंदिर पे हाजिर है। तो वो राम जी के लिए हाजिर है। और राम जी का संदेश जिस तरह से हर मंदिरों ने लिया है, लगता है कि राम राज्य सिर्फ भारत में नहीं पर पूरे विश्व में आएगा। जो भारत का जो विश्व गुरु बनने का एक हमारा सबका एक बड़ा स्वप्न है, वो धीरे धीरे साकार होने जा रहा है। लोगों में नहीं सिर्फ उत्साह, आनंद और उल्लास, बट अपने धर्म के प्रति श्रद्धा, अपने मातृभूमि के प्रति कर्तव्य और जन्मभूमि के प्रति का कर्तव्य भी महसूस हो रहा है कि हमें कैसे हिंदू समाज को जोड़ के हम राम जी का मैसेज आगे पहुंचा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी वो दर्शन के लिए आतुर है। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसा लगता है कि हम कहीं कुछ चूक न जाए, और वो आगे दौड़ के दर्शन करते हैं। आबाल वृद्ध सब ये इस यात्रा में जुड़े हैं किसी न किसी तरीके से। अक्षत समन्वय का जो कार्य हम कर रहे हैं ये यात्रा के दरमियान हर एक मंदिर के अंदर, और उस अक्षत समन्वय का जब भाव सबके आगे रखते हैं तो सबको ये एहसास होता है कि ये यात्रा चाहे 2 लोग, 4 लोग एक रथ या एक गाड़ी और 2 गाड़ी में साथ में मिलके चले, पर हम उनके साथ चल रहे हैं। ये एक बड़ा सा अभियान है और हम सब उसमें साथ में जुड़े हैं, और उसका ही आनंद और उत्साह सबको ज्यादा है। बस इतना ही मैं अभी कह सकूंगी। इमोशंस, हमारी भावना, हमारी श्रद्धा बस बढ़ती रहे राम जी के प्रति, हमारे देश के प्रति, और कर्म भूमि में भी हम कुछ राम जी के जो राम जी चाहते हैं ऐसा हम कुछ कर सके, यही मंगल प्रार्थना। धन्यवाद जी तेजल जी, धन्यवाद। तो जैसे मैंने पहले बताया, अमिताभ जी शुरू से अंत तक इस यात्रा के साथ जुड़े रहेंगे, जो लगभग 2 महीने का एस्टिमेट अभी है। देखिए एक्चुअली समय कितना लगता है। तो और तेजल जी पहले 15 दिन उसके साथ जुड़ी हैं, शुरू से अब तक हैं, और मेरा ख्याल है 1-2 दिन और इसके साथ रहेंगी। उसके बाद अजय शाह जी इसमें जुड़ने वाले हैं कल से, ऐसा मैंने सुना है। तो अजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप म्यूट पे हैं, जरा अनम्यूट कीजिए। नमस्ते, जय श्री राम। सो मैं 3 मंदिर में जा चुका हूं अब तक, और अभी अब से आज से करीब 15 या 20 दिन में यात्रा में रहूंगा, और बाद में 10-15 दिन का ब्रेक लेने के बाद पूरे वेस्ट कोस्ट की यात्रा में मैं रहूंगा। तो ये मैं विश्व हिंदू परिषद के साथ में करीब 40 साल से काम कर रहा हूं। तो इस तरह का उत्साह हर जगह पे, हमने काफी बड़े कार्यक्रम किए हुए हैं। हमने ग्लोबल विजन कॉन्फ्रेंस 93 में की थी,
12,000 लोग आए थे वहां पे। बाद में धर्म प्रसार यात्रा हमने की थी। लेकिन इस तरह हर गांव में जाना, हर मंदिर में जाना, करीब 1140 मंदिर है पूरे अमेरिका में। और इस अमेरिका के 1140 में से 850 मंदिर जो छोटे मोटे मंदिर है, बड़े मंदिर है, सब जगह पे जाना। उत्तर भारत के, जैसे तेजल बेन ने बताया, अमिताभ जी ने बताया, बड़े मंदिर है, छोटे मंदिर है, एक एक रूम के मंदिर है। कभी कभी जैसे हम कल गए थे चिन्मय मिशन का मंदिर, उनका बड़ा मंदिर बन रहा है, लेकिन आज कल हम जब गए थे तो उन्होंने एक छोटे से घर में करीब 1,000 स्क्वायर फुट की जगह पे हमने वो मंदिर बनाया हुआ है, लेकिन बड़ा मंदिर वहां पे बन रहा है। तो ऐसे छोटे मंदिर भी है और काफी बड़े मंदिर भी है। जैसे हम यहाँ पे न्यू जर्सी में BAPS का मंदिर, जिसके बारे में आपने सुना होगा, यहाँ ये सब भारत के बाहर का या तो एशिया के बाहर का ऐसे माना जाए तो सबसे बड़ा एक्टिव मंदिर ये है, ये जो हमारे न्यू जर्सी में है। तो ऐसे बड़े मंदिर में भी जाते हैं, छोटे मंदिर में भी जाते हैं, और हृदय से, अपने हृदय से लोग अपने हमारे साथ जुड़ते हैं। और ऐसा ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी भावना व्यक्तित होती है लोगों में कि हम जैसे अयोध्या गए थे, जब राम लाला की मूर्ति लोग देखते हैं, जब राम लाला जी का पोस्टर लोग देखते हैं, तो एक ऐसा सन्नाटा हो जाता है। लोग अपने दिल से लोग कह देते हैं कि जय श्री राम। तो ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, किसी को कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे हमें याद है जब अशोक सिंघल जी यहाँ पे आते थे, काफी बार अमेरिका आ चुके हैं, अशोक सिंघल जी ने एक स्वप्न व्यक्त किया था कि एक दिन श्री राम का मंदिर बनेगा। तो हम यही भावना से सब काम कर रहे थे। हम विद्यार्थियों के साथ काम कर रहे थे, उनके बाद विश्वविद्यालय के साथ काम कर रहे थे। सबके मन में ये भावना थी कि ये बनेगा, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि हमारा ऐसा सौभाग्य रहेगा कि हमारे जीवन में ये मंदिर बनेगा। तो आज जब ये मंदिर बना, जो लोगों ने अशोक सिंघल जी को सुना है पहले, जो लोगों ने जब अशोक सिंघल जी के साथ बात की है, उनके प्रोग्राम में गए, तो वो जब ये कार्यक्रम में आते हैं तो उनको लगता है कि एक स्वप्न पूर्ण हुआ है। स्वामी चिन्मयानंद के मंदिर में हम कल गए थे, वो विश्व हिंदू परिषद के स्थापक है, स्थापक प्रेसिडेंट थे, मतलब फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। तो उनके मंदिर में हम जब जाते हैं तो वो उनके जो भक्त है, उनके संप्रदाय के जो लोग हैं, वो भी कहते हैं कि हम, ये तो स्वामी जी का स्वप्न आपने पूरा किया। तो हर सबका, एक एक व्यक्ति का स्वप्न ये श्री राम जन्मभूमि के मंदिर में व्यक्त स्वप्न उनका फुलफिल हुआ है। और जब ये मूर्ति जब जाती है, जब रथ यात्रा जब वहां पे पहुंचती है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक ऐतिहासिक मौके में मुझे शामिल मिलने का ये मौका मिला है। जी अजय, धन्यवाद। तो कुछ मुझे प्रश्न भेजे गए हैं जिया जी की तरफ से, मैं उनका वैसे उनके उत्तर थोड़े थोड़े मिल चुके हैं आपको, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, ये यात्रा 23 मार्च को आरंभ हुई थी, और वो शिकागो से, और ये सारे यूएस में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जाएगी, और लगभग 20,000 के मील, 32,000 किलोमीटर की यात्रा ये होगी। और 851 मंदिर जो हैं जिन्होंने रजिस्टर किया था हमारे साथ प्राण प्रतिष्ठा से सेरेमनी के लिए, वो सब मंदिरों को विजिट किया जाएगा। दूसरी बात, कनाडा में भी ऐसा ही हो रहा है। टोरंटो से शुरू हुई थी 25 मार्च को, और वो उन्होंने 2 रथ किए हैं। एक ईस्ट साइड में जा रहा है जो नोवा स्कोशिया और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, और दूसरा ब्रिटिश कोलंबिया वेस्ट साइड में जा रहा है। उनका भी लगभग शायद 10,000 मील और 16,000 किलोमीटर के करीब हो जाएगा। 150 मंदिर के करीब उनका विजिट होगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार, यानी कि हमारे जीवन में, और बल्कि कनाडा के पार्लियामेंट के जीवन में पहली बार श्री राम लला कनाडा की पार्लियामेंट में स्थापित हुए, वहां उनका यानी कि पूजन किया गया। तो बहुत बड़ी बात है ये। तो ठीक है, उसके बाद मैं श्री बागरा जी को एक तो नमन करूंगा कि वो हमारे साथ जुड़े हैं, और उनसे कहूंगा कि वो हमें थोड़ा हमारा उत्साह बढ़ाएं, और थोड़ा इस विषय में हमें कुछ बताएं। धन्यवाद जय भाई। सबसे पहले तो आप सबको, मेरे साथी कार्यकर्ताओं को और पत्रकार बंधुओं को कल से प्रारंभ हो रहे नए संवत्सर 2081 की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना।
प्रभु राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, सिर्फ भारत के नहीं हैं, पूरे मानव जाति के लिए वो एक आदर्श हैं। जब हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो जिस प्रकार के मानव जीवन में जो मर्यादाएं उन्होंने स्थापित की, वो आदर्श, वो मर्यादाएं पूरे मानव जाति के लिए कल्याणकारी और हितकारी हैं। और इसीलिए पूरे विश्व में हर महाद्वीप में प्रभु राम की पूजा होती रही है, किसी न किसी रूप में। उनकी कथा, राम कथा, पूरे विश्व में हर महाद्वीप में प्रचलित थी। आज भी अनेक देशों में राम कथा का मंचन, चित्रण, चर्चा विभिन्न संस्कृतियों में अपने अपने तरीके से होती है। यह स्वाभाविक था कि भारत में और भारत के आस पड़ोस के देश श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, क्योंकि नजदीक के देश हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ के भक्त बड़ी मात्रा में उपस्थित हो सके और अभी भी दर्शनों के लिए बराबर आ रहे हैं। सुदूर अमेरिका में, जो दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका दो सबसे बड़े ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर भारत से गए भारतवंशी हिंदुओं की संख्या अधिक है, और भारतवंशी हिंदुओं के अलावा बाकी धर्मावलंबियों की संख्या भी बहुत है। उन सब के मन में भगवान राम के प्रति अपार श्रद्धा है। इसलिए अमेरिका और कनाडा, इन दोनों देशों के कार्यकर्ताओं ने जो एक ये पहल की कि प्रभु राम का संदेश किसी रूप में जन जन तक पहुंचाया जाए। स्वाभाविक था, क्योंकि श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने जब ये श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन का शुरुआत किया, सूत्रपात किया था, तो एक रथ से किया था। इसलिए रथ के रूप में ही प्रभु राम को अमेरिका के कार्यकर्ताओं ने अमेरिका और कनाडा के जन जन तक पहुंचाने का निश्चय किया। ये स्वाभाविक था और ये बहुत ही उल्लास का विषय है, गर्व का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में और बड़ी सघनता से सुदूर इलाकों में 20-22 हजार किलोमीटर की यात्रा करना, यानी भारत से लगभग 10 गुना बड़े क्षेत्र को कवर करना, ये बहुत ही कठिन काम है। लेकिन ये प्रभु का, राम का काम है, इसलिए प्रभु राम इस काम को सहज बना रहे हैं। प्रभु राम का मानवता का, विश्व बंधुत्व का संदेश हमारे विश्व हिंदू परिषद अमेरिका के कार्यकर्ता उस भूभाग में, क्षेत्र में फैला रहे हैं। ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि प्रभु राम ने कभी भी समाज में भेद का, समाज में किसी प्रकार की गुटबाजी का, तोड़ने का कोई काम नहीं करके नैतिक मूल्यों की, धर्म की और मर्यादाओं की स्थापना का काम किया। और पूरी मानवता के लिए जब जब कोई त्रास का विषय आया, जब जब कोई विडंबना आई, जब जब कोई विपदा आई, वो वैचारिक हो, प्राकृतिक हो या अन्य प्रकार की, प्रभु राम का संदेश ही उन सब के लिए समाधान का रास्ता दिखाती है। इसलिए अमेरिका में और कनाडा में ये जो पहल विश्व हिंदू परिषद अमेरिका के कार्यकर्ताओं ने की, अत्यंत सराहनीय है, बहुत ही उत्साहवर्धक है, लाभकारी है। और प्रभु राम का संदेश, विश्व बंधुत्व का संदेश उस भूभाग में बड़ी अच्छी तरीके से फैल रहा है, बहुत ही संतोष का विषय है। जिस प्रकार से पिछले महीने पूरे भारत में गूंज रहा था, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, प्रभु राम आएंगे, वैसे ही अमेरिका कनाडा के हर मंदिर में यह संदेश गूंज रहा है कि हमारे मंदिर के भाग आज खुल जाएंगे, प्रभु राम आएंगे। तो प्रभु राम हर मंदिर में जा रहे हैं, उनका विग्रह वहां हो या नहीं हो, लेकिन अपने विश्व बंधुत्व का, प्रेम का, मानवता का संदेश लेकर वो सब जगह जा रहे हैं। ये बहुत ही गर्व का विषय है और ये पूरे समाज को, पूरी मानवता को, अमेरिका के स्थानीय समाज को भी एक शुभ संदेश देगा। ये हमारी मान्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल जिया जी, अगर अभी वी शुड ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस।
जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहें हमारे जितने भी यहाँ पत्रकार हैं, तो उनको कहिए प्लीज माइक्रोफोन के पास आए और अपना नाम और अपना किस से जुड़े हैं, किस न्यूज चैनल से या पत्र से जुड़े हैं, जरा वो एक बार बोलें, उसके बाद अपना प्रश्न हमसे पूछें। आप लोगों को जो भी प्रश्न हो आप आ जाए ना। जी नमस्कार। आवाज आ रही? जी जी, थोड़ा सा नजदीक आ जाइए माइक्रोफोन के। वैसे हाँ, जी नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। सर, ये मैं जानना चाहता हूँ जय कि श्री राम। 22,000 किलोमीटर का ये यात्रा है, इसमें कितने लोग जुड़ जाएंगे जो मंदिर तक वहां की यात्रा करेंगे यहाँ पे? आप अपना नाम जरा बताइएगा प्लीज। और मेरा नाम दीपक आनंद है, मेरा पास अपना देश अपने लोग, मैं न्यूज पेपर से हूँ सर। जी, अमिताभ जी, आप इस बताएंगे इसके नहीं, बारे में। प्रश्न नहीं सुना मुझे पूरा कि क्या। क्वेश्चन इज दैट कि इस पूरी यात्रा में कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितने लोग चल रहे हैं यात्रा में, दैट्स ऑल। तो हम दो ही व्हीकल हैं, उसमें 4 लोग हैं। एक व्हीकल में 2 और एक में 2, तो टोटल 4 लोग हैं। 2 व्हीकल हैं। एक पूरा राम रथ सजा हुआ है, आपको शायद चित्र जय जी ने भेजे होंगे। और एक हमारा मीडिया वैन है जो हमारे डॉक्यूमेंट करने के लिए यात्रा को, वो साथ में चल रहे हैं। तो टोटल 4। टोटल 4 लोग हैं। और अभी कल से 5 हो जाएंगे। अजय जी कल ज्वाइन कर रहे हैं हमें यात्रा में। आज से ज्वाइन कर रहे हैं, सॉरी, आज शाम को। अभी आज दिन में तो हम नहीं मूव करेंगे, आज शाम से अजय जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगले 15 दिन तक कुछ देर के लिए 5 लोग रहेंगे, फिर 4 ही रहेंगे। और जो मीडिया टीम है और मैं, 3 हम लोग जो हैं प्रारंभ से अंत तक सब जगह जाएंगे। अमिताभ जी, एक चीज मैं ऐड करूंगा, अगर आप ना मानते हो, तो ये है कि हर रीजन में और हर रीजन में रीजनल कोऑर्डिनेटर्स ज्वाइन होते हैं और हर शहर हाँ। में लोकल कोऑर्डिनेटर्स भी ज्वाइन होते हैं। तो मतलब नेशनली 4 जन जा रहे हैं, लेकिन 5 जन या 4 या 5 जन जा रहे हैं, लेकिन हर, अगर जैसे न्यूजर्सी में आए तो लोकल न्यूजर्सी के लोग ज्वाइन हो जाते हैं, बॉस्टन गए तो वहां के लोग ज्वाइन हो जाते हैं। तो इस तरह से लोकल लोग का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है, अच्छा ही है। कल भी हमारे पेंसिल्वेनिया के जो कार्यकर्ता थे वो हमारे साथ जुड़े। तो इस तरह से हर मंदिर में कार्यकर्ता आ जाते हैं, हर शहर में आ जाते हैं, हर स्टेट में आ जाते हैं और हर रीजन में आ जाते हैं। ऐसे 9 रीजन या 11 रीजन है, 14 रीजन, हाँ 16 रीजन, वो सब एक 14 रीजन, 14 रीजन, सॉरी 14 रीजन है। 14 रीजन, हर रीजन में एक जन आ जाता है। तो इस तरह से ऐसे संख्या गिनी जाए तो काफी हो जाती है, लेकिन 4 लोग पूरे देश में घूम रहे हैं। और अगर आप मंदिरों में डिवोटीज को भी ऐड कर दें तो वो हजारों में पहुंच जाता है रात। एक मंदिर में आप बता रहे थे कि 600 से ज्यादा लोग थे। कल रात तो 1000 लोग थे वहां पर, तो ढोल ताशा हाँ अनबिलीवेबल। हाँ, कनाडा में कई मंदिरों में 1000, 1500 लोग हैं। तो मतलब है कि अगर आप इन सबको जोड़ने लगेंगे तो मतलब है कि संख्या गिनी नहीं जाएगी। नहीं, वो तो प्रयत्न वही है कि सब हिंदुओं को जोड़ने का प्रयत्न है। जी जी। तो हर जगह पर मैं वही पार्ट में आ रहा था जो अजय जी ने बोला कि 4, उनका प्रश्न के हिसाब से 4 लोग कोर टीम है। वो जहां भी जाते हैं उनको हमारा स्ट्रक्चर जो है वो रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, लोकल कोऑर्डिनेटर हैं, लोकल कार्यकर्ता हैं, centralized transportation है. So very important. There is a core team of people sitting and designing the map as we move forward. वो मंदिरों को संपर्क करते हैं, मंदिरों से बात करते हैं, समय तय करते हैं। अगर कुछ डिले होता है तो वो मंदिरों को बताते हैं। तो वो बैक ऑफिस पूरा कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। और ये है कि मैं उनको बहुत बड़ा श्रेय दूंगा, नियति बेन को। शी हैज 3 little kids. You know, her oldest is I think 11 years old, and so you can imagine the youngest is about not even a year old. Yeah, youngest is not even a year old. So, and with that, taking care of 3 babies at home, and she's managing the entire process. It's Nari Shakti. I just it's unbelievable. And similarly, we have Shipra ji in the back office helping Niyati Ben, and we have Anurag ji helping. Again, they have children at home. And they are also, there is a
epitome of dedication that these guys are setting, that is unmatched. Because उनकी सपोर्ट के बिना आगे मूव करना संभव नहीं है. जी, और धन्यवाद. अमिताभ जी, दूसरी जय भाई, अगर जो कुछ प्रश्न प्रश्न था, प्रश्न का सटीक उत्तर दें तो हम रथ के साथ में तो 3 या 4 कार्यकर्ता हैं, परंतु जी। जो कवरेज है रास्ते में, घरों में, मंदिरों में, पुजारी, हमारे कार्यकर्ता, भक्तगण, सभी मिला के अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल टू बी टच्ड बाय द रथ यात्रा, वो तो करीबन 2.5-3 लाख के करीब होगी, ये मेरा अनुमान है. आप अपना जो भी सही आप बता सकते हैं. शायद इससे भी ज्यादा हो, वो उसका अनुमान मतलब है कि लगाना बहुत ही कठिन है. और ये सिर्फ हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, अभी अभी कनाडा को जोड़िए इसमें तो ये कहीं और पहुंच जाता है. तो एक बहुत, यानी कि इसे आप एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक अभियान कह सकते हैं. ऐसा नॉर्थ अमेरिका में ना कभी हुआ, मतलब कभी हुआ नहीं है. अब कभी दोबारा होगा, काशी और मथुरा होंगे तो फिर से होगा. अजय जी, आई वुड ऐड वन मोर थिंग. राम रथ यात्रा, ये संजय मेहता जी ने याद कराया, राम रथ यात्रा बहुत हुई है. राम लला की यात्रा पहली बार हो रही है और अमेरिका से शुरू हुई है. जी जी, ये आप मेरे ख्याल और प्रश्न पूछने जा रहे हैं आप. बहुत ही सुंदर विषय और बहुत ही सुंदर पॉइंट आपने बताया हम सबको. आपका कुछ प्रश्न है? जी बताइए. आप सबको नमस्ते. मैं तीरथ कुमार, LKS न्यूज से. आप ये बता सकेंगे इसमें कितने दिन लगेंगे इस यात्रा में, एक, और दूसरा इसमें अमेरिका और कनाडा के कोई पॉलिटिकल लीडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं? नहीं, अमिताभ जी, इसको ए पॉलिटिकल है. ये राम रथ यात्रा है, इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हम नहीं कर रहे हैं. अगर कोई पॉलिटिकल अफिलिएटेड लीडर या कुछ मंदिर कहीं पे इनवाइट कर लेते हैं तो वो कर सकते हैं. हम VHPA की तरफ से किसी पॉलिटिकल उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं. हमारा गोल है सब मंदिरों को विजिट करना, सब राम भक्तों को विजिट करना जो प्रतीक्षा कर रहे हैं. और यात्रा का समय जो है वो, और हमने ओरिजिनली जो माइलेज सोची थी उससे तो ये 4-5 गुना ज्यादा ही होगा. तो समय पे हम ठीक चल रहे हैं, तो समय आई थिंक 60 दिन में हम यात्रा संपूर्ण कर सकेंगे. थैंक यू. 60 दिन, हाँ 60, हाँ जी 60 डेज. जी. कोई और प्रश्न? आप माइक पास कर लीजिए पीछे प्रश्न के. आपका नाम और न्यूज पेपर का नाम है जो. जी, अगर आप आगे ही आ जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कैमरा में भी आ जाएंगे आप, थोड़ा अच्छा लगेगा. जी जी, धन्यवाद. सर, कुमार है, मैं न्यूज एक्सप्रेस से हूँ. जी जी, नमस्कार. ये यात्रा पूछना था कि ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी और कितना समय इसमें लगेगा और कब से ये यात्रा शुरू होगी? जी, तो ये एक्चुअली जैसे बताया था, ये यात्रा अमेरिका में जो यात्रा है ये मार्च 23 को शुरू हुई थी, होली के दिन से. और हमारा हेड ऑफिस है हिंदू सेंटर शिकागो में, वहां से आरंभ हुई थी. और लगभग 60 दिन चलेगी जैसा बताया. और पहले एस्टिमेट था 8,000 मील का, जो लगभग 13,000 किलोमीटर बनता है. लेकिन जैसे जैसे ये चलते जा रहे हैं, अब मतलब है कि आपको कई लोगों को अंदाजा नहीं है अमेरिका कितना बड़ा है और कनाडा कितना बड़ा है. हमें भी शायद इसका अंदाजा नहीं था जैसे शुरू किया था. तो 8,000 मील का एस्टिमेट था, और वो अब बढ़ के लगभग 20,000 मील, जो 32,000 किलोमीटर हो गया है. वो सिर्फ अमेरिका का भाग है. कनाडा को इसमें और जोड़ दीजिए तो आप स्वयं उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये पूरा अभियान है. जी, और मैं कुछ लगभग कितने मंदिरों से होते हुए यात्रा जाएगी सर? जी, 851 मंदिर अमेरिका में हैं,
और लगभग कितने मंदिरों से होते हुए? एक्चुअली क्या है कि टोटल मंदिर बताया था अमिताभ जी ने 1140 मंदिर है अमेरिका में, और लगभग 200 मंदिर guess हैं कनाडा में। 1243 मंदिर हैं शायद, जिनसे 1243 मंदिर चिन्हित किए गए हैं जिनसे यात्रा होकर के जाएगी। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये है कि उसमें से 851 मंदिर अमेरिका में और 151 मंदिर कनाडा में जो है उन्होंने रजिस्टर किया था, और उन्होंने भाग लिया था श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में 22 जनवरी को। तो उन सब मंदिरों को विजिट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितने हजार से ऊपर हो गए थोड़े। हाँ जी। दूसरा माइक पास कर दीजिए, पीछे से। दूसरा माइक है ना, वो पास कर दीजिए। आप न्यूज पेपर का डिटेल्स। सर, मेरा सवाल ये है कि अमेरिका में राम यात्रा निकाल रहे हैं, क्या यहाँ से भी लोगों को ले जाएंगे? जी, आप प्रश्न को जरा दोबारा। नहीं, प्रश्न समझ नहीं आया। जी, प्रश्न पूरा समझ में आया, थोड़ा I think जी, आप प्रश्न एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, हाँ, थोड़ा आगे आएंगे तो बेहतर रहेगा। आपको थोड़ी एक्सरसाइज लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका में यात्रा निकल रही है, तो क्या यहाँ से भी लोगों को लेके जाएंगे उसमें यात्रा में? हमने उसके लिए निमंत्रण भेजा है। अब ये आगरा जी पर है, मिलिंद जी पर है, स्वामी जी पर है कि वो कब आ रहे। but general public we are not inviting any जनरल पब्लिक general public we are not inviting. हाँ, लेकिन But we do meet Bharatiya who are here to visit USA, स्पेशल जो हमारे बुजुर्ग है जो यहाँ पे अपने बच्चों के साथ रहने के लिए आ जाते हैं, तो थोड़े इस महीने के लिए वो यहाँ है, और उनको जब ये यात्रा में सम्मिलित होने का और रामलला का दर्शन करने का मौका मिल जाता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि हम तो भारत तो रामलला के दर्शन करने जा नहीं पाए, अमेरिका के रामलला के दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे जो कोई विजिटर्स ऑलरेडी आ गए हैं तो वो कभी कभी सम्मिलित होके भगवान जी के दर्शन के लाभ ले रहे हैं। लेकिन आप में से कोई भी अमेरिका विजिट करना चाहे और हमारे साथ जुड़ना चाहे तो आपका बहुत 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 स्वागत है। उसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं मॉडरेटर बन जाती हूँ। जी जी बिल्कुल। किसी के पास भारत 24 से गौरव मिश्रा। मेरा सवाल ये है सर कि रामनवमी भी आ रही है, तो क्या रामनवमी को देखते हुए भी खास करके विश्व हिंदू परिषद का एक है कि विदेश में तकरीबन 30 से ज्यादा कंट्री में कुछ वो लोग कर रहे हैं रामनवमी पे, ये रथ यात्रा आप लोग जो निकाल रहे हैं अयोध्या में एक कुछ मैसेज देना या वहां कुछ ऐसा कार्यक्रम, या फिर विदेश में कुछ अलग अलग कंट्री में आप लोग कुछ कर रहे हैं कार्यक्रम? वो लोकल चैप्टर्स अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। रामनवमी पे बहुत से प्रोग्राम रखे गए हैं लोकल चैप्टर्स में। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ है। शिकागो में जैसे अखंड रामायण का पाठ है, हमारे डीसी चैप्टर में वहां पे रामनवमी बड़े स्तर पे मनाई जा रही है, कैलिफोर्निया में बड़े स्तर पर। तो लोकल चैप्टर वो कार्य करते हैं। दोनों कार्यों में कोई वो नहीं है। अब ये यात्रा कौन से राज्य में, कौन से चैप्टर में, कौन से समय में किस रामनवमी पर पहुंचती है, वहां बड़ा उल्लास होगा। पर हर क्षेत्र में हो रहा है, कोई काम नहीं रुक रहे बाकी के। बागरा जी आप म्यूट पर हैं। बागरा जी म्यूट जी आप म्यूट पे हैं। बागरा जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। क्षमा कीजिएगा। जैसे गौरव जी, अमिताभ जी ने बताया, अमेरिका में रथ यात्रा अपनी जगह चल रही है और हर चैप्टर में, हर शहर में रामनवमी के प्रोग्राम प्रतिवर्ष होते हैं। इस वर्ष कुछ विशेष उत्साह से हो रहे हैं। परंतु जो प्रश्न आपने पूछा विभिन्न 30 देशों का, तो कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर रामनवमी बड़े अपने अपने देशों का सबसे बड़े पर्वों में से हैं। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिडाद टोबैगो, जहां जहां भारतवंशी हिंदू अच्छी संख्या में हैं,
वहाँ रामनवमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष प्रभु रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा की वजह से एक विशेष उत्साह है, और विश्व हिंदू परिषद के जितने भी चैप्टर इन सारे देशों में, वो चैप्टरों का जैसे हमको समाचार भी मिल रहा है, कार्यक्रमों की सूचना भी आ रही है, योजनाएं बन रही हैं। कुछ देशों में रामनवमी के दिन को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है। तो उत्सव के नाते अपने अपने देशों में अपनी संख्या बल के आधार पर वो सभी देश 30 से भी अधिक देश हैं जो रामनवमी का पर्व बड़े उत्साह से मना रहे हैं। जी सर, जी सर, धन्यवाद, धन्यवाद जी। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे। और जलपान की व्यवस्था है, आप सभी जलपान करके जाइएगा। और एक डायरी चाहिए, इसमें अपना प्लीज आप तो कांटेक्ट डिटेल जरूर दे दें, जिससे कि हम लोग पुनः कनेक्ट कर सके सभी लोग। जी। आप सभी वरिष्ठ गणों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने वहां पे आएंगे, सभी सुबह हुई होगी ब्रह्म मुहूर्त में जुड़ करके और अपना समय दिया इस महत्वपूर्ण इस हार्दिक विषय को, जो कि श्री रामलला भारत के प्राण ही नहीं सनातन के प्राण से जुड़ा हुआ इस यात्रा निकल रहा है। हम सभी यहाँ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम प्रयास करेंगे कि हम में से कोई ना कोई वहां पे आकर के जुड़ पाए और भारत के लिए भी वहां से बैठ करके पत्रकारिता कर पाए। जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का पुनः। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे प्रेसगण जो भी आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, पहले जिया जी आपका बहुत बहुत आभार, आपने ये सारा आयोजन किया। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो तो मतलब वो हो ही रहा है, लेकिन अब आपके ऊपर जो जितने भी पत्रगण यहाँ हैं, आप सबके ऊपर ये है, ये उत्तरदायित्व है कि आप इसको हमारे भारतीय यानी कि उसमें सबको बताएं, ताकि सब में उल्लास हो के हाँ देखिए भारत संस्कृति सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन सब जगह उसका यानी कि प्रचार हो रहा है और इतना उसका स्प्रेडिंग हो रहा है। तो ये सब आप लोगों के ऊपर उत्तरदायित्व है इसको आगे बढ़ाने का, लोगों को बताने का। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस तरह की बैठकें होती रहेंगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी तो लगभग 1.5 महीना और है, डेढ़ से ज्यादा है। तो जैसे कहीं बड़े सेंटर्स में जाएंगे तो फिर से दोबारा आयोजन करेंगे ऐसा। बिल्कुल जी। जी पुनः सभी को आभार, आप हमारी तरफ से और आप सबकी तरफ से, मैं सभी यहाँ पत्रकार बंधु जो बैठे उनका धन्यवाद बोलती हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।